गुलाब कहाँ चला गया भाई? Good afternoon, everyone. Good afternoon to everyone present for today's session. I am Dr. Madhuri Bhogan, Research Associate at Sandu Pharmaceutical Limited. Sandu Pharmaceutical Limited is one of the renowned manufacturers trusted in Ayurveda since 1899 with ISO and GMP certified state-of-art Goa factory and Navi Mumbai manufacturing facilities. We offer time-tested Ayurvedic medicines based on fundamental Ayurvedic principles blended with modern scientific technology, focusing on research and development, ensuring efficacy and safety. Dear friends, today I would like to welcome you all to the 12th session of Sandu Vicharve session, a knowledge sharing and gathering platform where valuable information covering health and research is shared. The goal of our scientific engagement is to bring together bright minds, gather thoughts that are idea focused on wide range of subjects to provoke conversations that matter and foster learning, inspiration and wonder. 14th of November globally was celebrated as World Diabetes Day with the theme as access to diabetes care. Keeping this in mind, the topic for today's Sandu Vicharve, Nano Ayurveda, latest revolutionary trend was decided, which my friend and colleague Dr. Trupti Patil, MD Rasashastra and Vaishya Kalpana, currently working as research associate at Sandu Pharmaceutical Limited, will be discussing with us. Dr. Trupti Patil has passed her BMS with excellence as rank holder from Dr. D.Y. Patil School of Ayurveda 2014 and PG from YMT Ayurveda Medical College in 2019. She has successfully conducted many analytical, preclinical and clinical research work during this time. Dr. Trupti Patil has enthusiastically worked on not only innovative formulations like herbal gels, ointments, nutrition bar, but also various herbo-mineral formulations such as Rasa Sindur, Mruganka Potli, Tankan Amrut Malhar, and other Rasaushadis. She has numerous publications and achievements under her belt for her unique work on clinical and preclinical studies
conducted by her throughout her career. She has presented 17 research papers and won 9 awards. To mention a few, International Paper Presentation Award for her work, Pharmaceutical Development and Antimicrobial Study of Tankanamrut Malhar in 2017, and Pharmaceutical Preparation and XRF Analysis of Mruganka Potli in 2019. National achievements are pharmaceutical preparation of Shiv Tandav Ras with respect to Atyayik Chikitsa in Ayurveda, and formulation of Vidari Kanda Yoga based nutrition bar and assessment of its nutritional attributes. Dr. Trupti has been invited as a guest speaker for Vivek Talks organized by Shri Dhut Papeshwar Limited, where she presented her unique views and comments on Swarna Prashan. She has also actively attended more than 21 workshops, seminars, and conferences on Bhasma Kalpana, GMP, pharmacovigilance, Panchabhotik Chikitsa workshop, etc. to keep herself updated with new trends in her field. She has also trained in practices such as Vidyagni Karma Chikitsa, Garbha Sanskar, and more. Now, without any further delay, I request Dr. Trupti Patil to start the session. I request everyone to please mute themselves during the session. And if you have any further questions, please type them in the chat box and we will take them at the end of the session. Good afternoon, everyone. Thank you, Dr. Madhuri, for introducing me. So, without wasting much time, आज का हमारा टॉपिक हम सांडू विचार वेद के इस सेशन में हम चालू करेंगे. सो सबसे पहले तो श्री धन्वंतरी जी और श्री नागार्जुन जी इन दोनों को नमन करते हुए आज का जो टॉपिक है वो नैनो आयुर्वेद लेटेस्ट रिवोल्यूशनरी ट्रेंड, इसे हम चालू करने जा रहे हैं. सो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे जो कल 14 नवंबर को वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया. सो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आज के हम इस डिस्कशन में कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे. तो सबसे पहले तो एंशिएंट इनसाइट, सबसे जो पुरानी कुछ रेफरेंसेस है जो नैनो पार्टिकल्स या भस्म कल्पना को डिस्क्राइब करते हैं. उसके बाद जो मॉडर्न डिस्कवरीज जो इसको रिलेवेंट उसके रेफरेंसेस कि हाँ नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो पार्टिकल्स, नैनो फार्मास्यूटिकल्स इसके पुराने रेफरेंस और आज के मॉडर्न साइंस इसको रिलेवेंस इसका क्या है. उसके बाद नैनो पार्टिकल्स, नैनो फार्मास्यूटिकल और भस्म का कोई रिलेशन है क्या. इन जनरल डायबिटीज देखेंगे. उसके बाद जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की जो थीम है फॉर दिस ईयर ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे वो है एक्सेस टू डायबिटिक केयर. तो उसके बारे में या उसे हम क्या आयुर्वेद के थ्रू या फिर नैनो आयुर्वेद के थ्रू क्या हम उसको प्रैक्टिस में कैसे लेके आ सकते हैं. देन इसकी जरूरत क्या है आयुर्वेद की, नैनो आयुर्वेद की. देन इम्पोर्टेंस ऑफ खलवी रसायन के बारे में देखेंगे. देन इसके बाद कल्प अभ्यास, जो आज के हमारे सेशन में हम दो ऐसे कल्प डिस्कस करेंगे कि जो आपको डायबिटीज में एज ए प्रैक्टिस में आपको ऐसे काम आए कि आप उसको बहुत ही कम समय में उसका आपको रिजल्ट मिले. उसके बाद इसका पार्ट संयोजन में देखेंगे कि इसको हम उसमें उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसको उसके कोई एक्शंस है क्या, उसके कोई सेफ्टी स्टडीज है क्या, और उसके बाद कंक्लूजन. सो लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहले तो मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी जो चालू होती है ऑलमोस्ट रामायण काल से. रामायण काल में एक स्टोरी बताई जाती है. यहाँ पे जो मैंने बुक का एक इमेज दिया है वो है वाइली पब्लिकेशंस के अंडर एक बुक पब्लिश किया हुआ है जो हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न टाइम्स. इट इज एडिटेड बाय माधुरी, डॉक्टर माधुरी शेरॉन जो है रिसर्च डायरेक्टर बालशन सेंटर फॉर रिसर्च नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की. इन्होंने अपने बुक में ये चीज मेंशन की है कि रामायण काल में जब श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अपने वनवास के लिए निकल पड़े थे, तब जब वो देवी अनुसुया जी को मिले तो देवी अनुसुया जी ने सीता जी को कुछ ऐसी ज्वेलरी गिफ्ट करी जो अपना लश्कर कभी भी नहीं खोती थी. एक ऐसी क्रीम
उन्हें प्रेजेंट की जो कभी भी, वो एक एंटी एजिंग क्रीम थी बेसिकली, और एक ऐसी साड़ी उनको गिफ्ट दी जो सेल्फ क्लीनिंग साड़ी थी। तो ये तीनों चीजें रामायण काल में मेंशन की हुई है कि ये इन्होंने गिफ्ट करी। तो आज के मॉडर्न साइंस ने इस चीज को प्रूव किया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो रिलेवेंस, उसके रिलेवेंस उसका बताया गया है कि वो ऐसे कौन सी चीजों से वो ज्वेलरी रहे या साड़ी रहे या क्रीम बनी हुई रहेगी। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने आज के प्रूव कर दिया है कि जो उस टाइम जो सेल्फ क्लीनिंग साड़ी दी थी वो फैब्रिक कोटेड नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से ऐसी कोई बनी थी, जो या फिर उसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड बोला जाता है, जो एज ए फोटोकैटालिस्ट लेयर बना के उसको जो ऑर्गेनिक मास था वो डिस्ट्रॉय करके जो फाउलिंग होती है वो कम करके chemical degradation of organic matter dust in the presence of light which is leaving a self clean fabric। तो जो साड़ी उन्होंने गिफ्ट करी वो बेसिकली वो एक नैनो पार्टिकल से ही बनी थी। जो एंटी एजिंग क्रीम दी थी वो गोल्ड नैनो पार्टिकल से बनी थी, और जो ज्वेलरी उन्हें प्रेजेंट की गई थी वो नैनो कार्बन स्ट्रक्चर से बनी हुई थी। तो ये सबसे पुराना रेफरेंस हम कह सकते हैं कि जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स का रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद हमारे इंडिया में जो आयरन पिलर ऑफ धार है या फिर जो आयरन पिलर ऑफ दिल्ली है, ये एक पुराने रेफरेंस में से कह सकते हैं कि जो इंडिया में धातु शास्त्र का निर्माण या धातु शास्त्र का रेफरेंस या उसका प्रोविजन पहले से था। इसका एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट 1600 जो दिल्ली का पिलर है या जो वो राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 1600 साल पुराना ये बनाया हुआ पिलर है। तो ये पिलर है जो आज प्रूव हो चुका है कि वो 98% प्योर आयरन से बना हुआ है, and which has not rusted even after 16,000 years. So it is because of high amount of phosphorus, almost 1% to 0.05% phosphorus इसमें है। इसके वजह से ये अभी भी बिना किसी रस्ट के अच्छा खासा खड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे जो एक एग्जाम्पल है जिसे टीपू सुल्तान का तलवार, जो फेमस तलवार है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये भी तलवार वो एक कार्बन नैनो स्ट्रक्चर से बनी हुई है। इस पे ये जो सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट है जो कार्बन एटम से बनी हुई है। उसके बाद ये जो एक्चुअल जो ये स्टील या फिर ये तलवार जो है वो बनी हुई थी दमास्कस स्टील या फिर वुड स्टील के नाम से जाना जाता है। दमास्कस स्टील एक बेसिकली नैनो कार्बन इम्प्रेग्नेटेड मेटल है जो एक्चुअली इंडियन स्टील ही है। जो इसका एक रेफरेंस है कि इसका मतलब यही है कि इंडिया में तब से इतने पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से ये चीज इंडिया में पाई गई थी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, इंडिया ऑलरेडी इस चीज को जानता था। उसके बाद ये जो तलवार है वो जैसे मैंने मेंशन किया कि कार्बन टू आयरन पार्टिकल से बनी हुई थी। तो आफ्टर दिस एंशिएंट प्री हिस्टोरिक रेफरेंसेस हम अभी आएंगे अपने आयुर्वेदिक रेफरेंस की तरफ। तो आयुर्वेद में मेडिसिन बनाने के जो बेसिकली 4 मेथड्स बोली गई है, उसमें से सबसे पहला है खरलीय कल्पना, जिसे हम भस्म को या फिर किसी चूर्णों को स्वरा, स्क्वात, हिम, पांट इनकी भावनाएं देके उसको मर्दन करके संस्कार उसके बढ़ा के हम उसको उसके बटी गुटी बनाते हैं। उसके बाद ये जो खरलीय के बाद जो परपटी कल्पना आती है उसमें हम कज्जली रहे या विविध धातुओं की कज्जलियां रहे, उससे हम केले के पत्ते पे या फिर घी में मेल्ट करके उस भस्म को मेल्ट करके हम उससे कज्जली की परपटी बना लेते हैं। उसके बाद ये बेसिकली जो चीजें हैं वो खरलीय या परपटी कल्पना या ये जो भी चीजें हैं वो अलग अलग टाइप के अग्नि से या फिर इसे कह सकते हैं कि हम टेम्परेचर, टेम्परेचर इन चीजों से ये मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर की जाती है या फिर इसमें ये बेसिक डिफरेंस है। तो खरलीय के बाद परपटी और परपटी के बाद जो आते हैं वो कुपिपक्व रसायन। तो यहाँ पे तो मैंने ताल सिंधु का एक रेफरेंस दिया हुआ है, पर कुपिपक्व रसायन ये एक बेसिकली भस्म प्रिपरेशन भी कहा जा सकता है जो कुपिपक्व मेथड से बनाया जाता है। इसमें अलग अलग भस्म या फिर कज्जली इनका या फिर धातुओं की पिष्टि इनका भस्म बनाया जाता है।
अलग अलग टेम्परेचर के साथ कुपिपक्व रसायन बनाए जाते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स ओनली रसायन, तो ये भस्म कल्पना या फिर रसायन कल्पना ही भी कहा जाता है, इसे मानते हैं। उसके बाद आयुर्वेद में एक सबसे अच्छी चीज या फिर जो कहते हैं कि आयुर्वेद में मॉडर्न की इमरजेंसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि रसपोटली नाम की जो प्रिपरेशन मेथड है या फिर ये जो मेडिसिन है, पोटली कल्पना, ये बेसिकली इमरजेंसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही है। इस विविध धातु भस्मों से या फिर रस कज्जली से इसका या फिर अलग अलग पाउडर के फॉर्म में भी पोटलिया अवेलेबल है या फिर हमारे ग्रंथों में मेंशन किया गया है, जिसे हमें प्रैक्टिस में हमारे यूज करना चाहिए। तो इसके बाद हम अगर देखेंगे तो खरलीय कल्पना, परपटी कल्पना, कुपिपक्व, रस पोटली कल्पना। इसके बाद अगर हम इसमें से एक चीज को अगर एज दिस इज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर तो शायद सारे पॉइंट इसमें कवर ना हो, इसके लिए आज हम बात करेंगे सिर्फ भस्म के ऊपर। तो भस्म जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं कि जो एक वेल डेवलप नैनो टेक्नोलॉजी या फिर नैनो मेडिसिन है, जो हम एंशिएंट टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं पुट मेथड से। अलग अलग तरीके के पुट इसमें बोले गए हैं, कपोत पुट या फिर कुक्कुट पुट, लघु पुट, महापुट, गज पुट, ये सारे पुट ये जो है वो अपने अपने टेम्परेचर उसके मेंशन किए हुए, नंबर ऑफ उपलेज मेंशन किए गए हैं, चक्रिका कैसे बनानी है, उसको शराव संपुट कैसे करना है, ये सारी चीजें हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी मेंशन किया गया हुआ है। उसके बाद ये ऑलरेडी जो भस्म है वो सारे मेटालिक मिनरल प्रिपरेशंस जो है वो उनको हम स्वरस के साथ या फिर मेंशन फांट या फिर किसी भी लिक्विड मटेरियल से हम डिकॉक्शन से हम उसे प्रोसेस करते हैं। और ये जो चीज है वो हम कोई नई नहीं है, वो हम ऑलमोस्ट 7th सेंचुरी से हम इसे फॉलो करते आ रहे हैं। जो आचार्य नागार्जुन जी ने रसशास्त्र का डेवलपमेंट जिस तरीके से हुआ, उन्होंने इस सारी चीजों को उसमें मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर मॉडर्न डिस्कवरीज में हम बात करेंगे तो ये एक रिसर्च पेपर है जो अमेरिका के जियो साइंटिस्ट, अमेरिकन जियो साइंटिस्ट है डॉक्टर माइकल होएला, इन्होंने ये एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। उसमें ये मेंशन करते हैं कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है एज अ टाइटल कि नैनो टेक्नोलॉजी नेचर्स गिफ्ट और अ साइंटिस्ट ब्रेन चाइल्ड। तो डेफिनेटली दिस इज अ नेचर्स गिफ्ट ही। तो ये पहले से ही ये चीज हमारे इसमें अवेलेबल थी, ये कोई नई ह्यूमन मेड मैन मेड चीज नहीं है। तो ये नेचर है, नेचुरल चीज है, उसमें हमने टाइम पर टाइम इस पर डेवलप किया गया है, जिसके रेफरेंसेस फ्रॉम रामायण टू हिस्टोरिक और आज के टाइम तक हम देते आ रहे हैं। ओके, सो बेसिकली हम देखेंगे कि नैनो मटेरियल या फिर नैनो ड्रग कैरियर क्या होते हैं। तो मॉडर्न डिस्कवरीज के हिसाब से या फिर जो भस्म कल्पना मैंने मेंशन किया, उसका जो बेसिक एम है कि वो मेडिसिन को वो एक ड्रग कैरियर है जो लार्जर सरफेस एरिया तो उसका लार्ज होता है, लेकिन साइज जो होती है इतनी छोटी होती है, बोल सकते हैं कि वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकती है बाय ऑर्गन टू ऑर्गन। और जो नैनो पार्टिकल है या फिर जो अपना नैनो भस्म है, वो डिलीवरी सिस्टम से लेके सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसके बाद अपने टारगेट ऑर्गन के, टारगेट सेल के, टारगेट टिश्यू तक जाके वो चीज काम करती है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स है वो अपनी ट्रीटमेंट शो करने के लिए या फिर अपना इफेक्ट दिखाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेते। जो अपना टारगेट साइट है, डिजायर्ड साइट है, उस पे ही जाके वो डायरेक्टली काम करते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये मॉडर्न डिस्कवरीज के हिसाब से अलग अलग नैनो स्ट्रक्चर्स है जो हेल्थ केयर सेक्टर्स में उसके अलग अलग एप्लीकेशंस मेंशन किए हुए हैं। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो एंटी फंगल्स या फिर एंटी माइक्रोबियल्स के रूप में यूज किए जाते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो बहुत ही आई गेस 10⁻⁹ इतने स्मॉल पार्टिकल साइज में इसको होती है साइज, तो वो जो है इट इज यूज फॉर डिलीवरिंग फाइब्रिनोजेन एंड उसके बाद उसको ब्रोकन बोन्स की जो ट्रीटमेंट है या ऑस्टियोपोरोसिस या ब्रेस्ट कैंसर जैसे चीजों में इसे एज ए ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। डेंड्रीमर्स होते हैं वो डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस के लिए या फिर जीन डिलीवरी के लिए, एंटीबैक्टीरियल एज ए एजेंट या फिर एंटी कैंसर ड्रग के लिए उसे यूज किया जाता है। टू इम्प्रूव द वैक्सीन फॉर्मुलेशंस आल्सो इट इज यूज्ड, डेंड्रीमर्स आर यूज्ड। देन नैनो डायमंड्स करके एक स्ट्रक्चर होता है
जो इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिसीज बाय टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। उसके बाद क्वांटम डॉट्स होते हैं, वो भी डायग्नोस्टिक चीजों में यूज होते हैं। जो उसके बाद नैनो फिल्म्स होती है, जो केमिकल या फिर बायोलॉजिकल नैनो मेडिकल मैकेनिकल सेंसर्स होते हैं। उसके बाद वो एज ए नैनो पैचेस भी यूज कर सकते हैं होते हैं, जो आफ्टर ओपन सर्जरी टू क्लोज द इंसिजन्स। देन लाइपोसोम्स होते हैं, वो एक्चुअल ड्रग डिलीवरी के लिए या फिर नैनो मेडिसिन के ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने कोई एक चीज यहाँ पे एक पिक्चर मेंशन किया है, जो एक्चुअल नैनो सिस्टम्स, जो डेंड्रीमर्स रहे, राइपोसोम्स रहे, क्वांटम डॉट्स रहे, या फिर नैनोस्फीयर नैनो पार्टिकल्स रहे, कार्बन नैनो ट्यूब्स रहे, ये सारे की सारी चीजें हम आजकल हेल्थ केयर सेक्टर में अप्लाई की जाती है। फिर वो जीन थेरेपी में रहे, एज ए ड्रग डिलीवरी रहे, जैसे मैंने यहाँ पे सारी मेंशन की, कैंसर थेरेपी में रहे, या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के लिए, ब्रेन सीएनएस या कार्डियोवास्कुलर सारे डिसीजेस ट्रीट करने के लिए आज नैनो फार्मास्यूटिकल्स या नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि नैनो पार्टिकल्स या कोई ऐसी चीज हम अगर कंज्यूम कर रहे थे तो वो हमारी बॉडी में एज अ फॉरेन पार्टिकल वो जाएगी, तो क्या वो सेफ है? तो नैनो पार्टिकल्स या फिर नैनो पार्टिकल्स का साइज एक्चुअली अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम से देखें तो ये सबसे बड़ा है तरबूज, या फिर हम इसे कलिंगड़ कहते हैं, वाटरमेलन, वो है 10⁻⁻1 10 सेंटीमीटर। उसके बाद 10⁻⁻2 1 सेंटीमीटर का कॉइन। उसके बाद 10⁻³ एक फुल स्टॉम, जो पेन के निब से हम देते हैं, वो है 10⁻³ साइज का डॉट। 10⁻⁴ साइज इज ऑलमोस्ट 100 माइक्रोन, जो हमारे हेयर की साइज होती है, नॉर्मल हेयर की। 10⁻⁵ इज आरबीसी, ऑलमोस्ट 5 माइक्रोमीटर्स। 10⁻�6 ये होता है एक वायरस का साइज। 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁸ -9 ये एक्चुअल कार्बन नैनो ट्यूब, जो मैंने जैसे मेंशन किया कि वो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोलॉजी के डिसीज से रिलेटेड वो चीजें यूज होती है। उसके बाद एक्चुअल गोल्ड भस्म या नैनो पार्टिकल जो हम बात कर रहे हैं, वो है 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁹ और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल सबसे छोटा है 10⁻⁻10। तो अगर हम इतने से रेंज में अगर हम यहाँ पे कोई चीज कंज्यूम कर रहे, अगर हम तो ये बॉडी हम उसे हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये सबसे पहली बात। उसके हमारे रेफरेंसेस भी हमें अवेलेबल है। ये सिर्फ मैंने एक आपको 10⁻⁹ ये साइज कितनी होती है ये दिखाने के लिए चीज, अब ये इमेज आपको शो करा। उसके बाद जो 15 नैनोमीटर ये जो आपको पार्टिकल दिख रहा है, वो गोल्ड नैनो पार्टिकल है। तो ये अगर इतना छोटा है या फिर इतना, अगर हम कह सकते हैं कि वो इतनी प्रूवन चीज है कि हम वो इजीली एसिमुलेबल एब्जॉर्बेबल चीज है, तो हमें इससे डरना नहीं चाहिए। उसके बाद ये हमने पार्टिकल साइज अलग अलग भस्मों की जो ऑलरेडी स्टडी प्रूव कर चुकी है, तो उसमें सुवर्ण भस्म जो सबसे ज्यादा आजकल बोला जाता है कि सुवर्ण भस्म कंज्यूम करना हेल्दी नहीं है या फिर वो बहुत टॉक्सिक होता है। तो ये हम आगे वैसे उसके बारे में और जानेंगे, लेकिन अगर उसकी साइज की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 5 to 20 नैनोमीटर्स में इसकी साइज है। रजत भस्म दैट इज सिल्वर, इट इज 1 to 100 नैनोमीटर्स। अभ्रक भस्म की साइज प्रूव हुई है, वो 19 से लेके 88 नैनोमीटर्स। लोहा भस्म की साइज है 100 to 50 नैनोमीटर्स। ताम्र भस्म की है वो ऑलमोस्ट लेस देन 100 नैनोमीटर्स। वंग भस्म उसका 150 to 300 नैनोमीटर्स। नाग भस्म का है 1 से लेके 60 नैनोमीटर। यशत भस्म का लेस देन 324 नैनोमीटर। मैक्सिमम इसका साइज जो है वो 324 नैनोमीटर तक कहा गया है या फिर प्रूव हुआ है। उसके बाद मौक्तिक भस्म वो है 20 से लेके 100 नैनोमीटर। देन रस सिंदूर का जो चीज मैंने कही कि एक फॉर्म ऑफ भस्म कल्पना हम बोल सकते हैं, तो जो कुपीपक्व मेथड से बनाते हैं, तो रस सिंदूर का पार्टिकल साइज वो 8 से लेके 16 नैनोमीटर तक उसका रेफरेंस मिले हैं। उसके बाद जो पोटली मैंने बोली कि जो आजकल प्रैक्टिस में बहुत कम यूज करते हैं वैद्य, लेकिन जो हमने करनी चाहिए, तो उसमें से एक रसगर्भ पोटली का पार्टिकल साइज है वो ऑलमोस्ट 317 नैनोमीटर तक उसका पार्टिकल साइज है। रस पर्पटी का है वो माइक्रोन में 0.8 से लेके 875 माइक्रोन। तो अगर हमने इतने सारे पार्टिकल साइज भस्मों के पार्टिकल साइज स्टडी हुई है, वो इतने नैनोमीटर्स तक अगर प्रूव चीजें है, प्रूवन है, तो हमें उसका प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा यूज जरूर करना चाहिए।
सेफली। जो भस्म परीक्षा आयुर्वेद में बोली गई है वो तो हम एक इन डिटेल नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ उसका आज मॉडर्न के हिसाब से या फिर उसको किस लेवल उसको हम उसके रिलेवेंस जानेंगे कि जो वारितर परीक्षा बोली गई है वो है फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ भस्म, जो भस्म को इतना लाइट या फिर फाइननेस उसका मेंशन करती है कि विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। सो वो ये जो चीज है वो लॉ ऑफ सरफेस टेंशन पे डिपेंड है। जो भस्म आपने बनाया है, क्या अगर वो पानी पे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब दे आर हाइड्रोफोबिक एंड दे हैव डेंसिटी लोअर देन 1। सो वो इतना फाइन होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमें उसको नैनो वर्ड या फिर नैनो पार्टिकल्स की तरफ ही इंडिकेट करती है। जो उन्नाम टेस्ट होती है वो भी इसको, और कंफर्मेटरी टेस्ट होती है वारितर की, विच इज स्मॉल ग्रेन ऑफ राइस दैट इज केयरफुली केप्ट ऑन द लेयर ऑफ भस्म। जो हमने ऑलरेडी भस्म प्रिपेयर करा हुआ है वारितर के लिए, वो पास हो चुका है, उस पे भी हमने एक स्मॉल ग्रेन ऑफ राइस रख के उसको देखना है, और वो अगर सिंक नहीं हुआ तो वही भस्म हमारा प्रॉपर बना हुआ है। देन रेखा पूर्णत्व, अगर हमने जो भस्म लिया हुआ है वो हमारे उंगली और हमारे थंब के दोनों के बीच में अगर वो अच्छे से बैठ रहा है या फिर वो अच्छे से फील हो रहा है, तो वो फाइननेस उसको मेंशन करती है। तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, और भी परहैप्स इट में शो कि नैनो साइज इसका है, अगर हम बोल सकते हैं। इस लक्षणत्व एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो इस चीज को या फिर भस्म को एज अ फॉरेन पार्टिकल अगर हम उसको लेंगे बॉडी में, अगर जो बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कि एज अ फॉरेन पार्टिकल हम उसको अंदर कैसे कंज्यूम करें, तो उसके लिए ये चीज हमें एक अच्छा बोल सकते हैं कि लक्षणत्व जो होता है वो फाइननेस एंड उसका स्मूथनेस भस्म का मेंशन करता है, विच प्रोड्यूसेस अ टैक्टाइल सेंसेशन टू द फिंगर टिप्स एंड इट कैन, सो वो एक चीज डिनोट करेगा कि आपने अगर इतना फाइन या सुलक्षण भस्म बनाया है, इसका मतलब वो बहुत इजीली एब्जॉर्बेबल और एसिमुलेबल है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इरिटेशन टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आवर जीआईटी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रसी भाव या फिर वो जो भस्म हम ले रहे हैं, तो अगर हम ले रहे हैं तो उसकी जैसे मैंने मेंशन किया कि नैनो पार्टिकल्स का जो एक पॉइंट है या फिर जो अच्छी चीज है वो डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पे, डायरेक्ट टारगेट सेल पे जाके वो काम करता है। तो सेम भस्म भी शीघ्र व्याप्ति है, तो क्विकली अपने टारगेट ऑर्गन में स्प्रेड होकर अपनी जो इजीली एब्जॉर्बेबल और एसिमुलेबल होता है। उसके बाद अगर हम जो भस्म बनाया है उसका पार्टिकल साइज कैसे नापे, तो वो उसमें कच अभाव आना चाहिए। जो वर्ड मतलब वो दिखने में इतना फाइन रहना चाहिए कि उसकी कंसिस्टेंसी शुड बी लाइक पोलन ग्रेन्स ऑफ केतकी फ्लावर। सो वो यूज के लिए सुटेबल है। ऐसी सारी चीजें हमारे ग्रंथ में मेंशन की हुई है। तो नैनो पार्टिकल्स का और एक चीज हम बोल सकते हैं कि जो निश्चंद्रत्व उसका भस्म का आना चाहिए, वो हम बोलते हैं। तो वो कैसा, तो वो निश्चंद्रत्व आना ही मतलब एक उसको नैनो उसका जो इट एग्जिबिट्स द कोलॉइडल नैनो पार्टिकल्स एंड एग्जिबिट नैनो साइज शेप एंड डिपेंडेंट ऑफ कलर। सो इट इज एक लश्यर उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट, और भस्म बनाने के बाद भी अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब उससे और मारण की जरूरत है। फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज भस्म की होती है उसमें रसायन सबसे बड़ी सबसे मेन प्रॉपर्टी भस्मों की बोली गई हुई है कि कोई भी भस्म आपको आप किसी पर्टिकुलर डिसीज में ट्रीट करने तो यूज कर ही रहे, लेकिन आयुर्वेद में या रसशास्त्र में जितने भी भस्म बोले गए हुए उसमें से ऑलमोस्ट 60 से 70% भस्म जो है वो रसायन एक्शन ही ज्यादा करते हैं। उसके बाद लोग योगवाही इसकी जो मैंने कहा कि नैनो स्ट्रक्चर है, नैनो पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी है कि डायरेक्ट टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन पे डिजायर्ड साइट पे एक्शन करना, तो भस्म भी हमारे योगवाही प्रॉपर्टी पजेस करते हैं जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, दे आर सुटेबल फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। उसके बाद अग्निदीपन, जो भी भस्म हमारे आयुर्वेद में मेंशन किए हुए सारे दीपन पाचनीय, मोस्ट ऑफ द भस्म आर दीपन पाचनीय, सो विच शोज द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, जो सेलुलर लेवल पे जो जाके काम कर सकते हैं। उसके बाद निर्धूम और अपूर्ण पुनर्भव, ये जो दोनों ही प्रॉपर्टी है वो भस्म का आप उसका फाइनल प्रोडक्ट चेक करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज यूज में आती है। तो इसके बाद अभी हमने देखा कि भस्म रहे या नैनो पार्टिकल रहे, इसका कोरिलेशन हमने अभी देखा कि हाँ इसमें से एक चीज अभी प्रूव हो रही है कि हाँ नैनो पार्टिकल्स या भस्म ये कोई अलग चीज नहीं है, दोनों भी एक दूसरे को रिजेंबल करती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डायबिटीज, जैसे कि आज हमने हमारा
इस ओकेजन पे, वर्ल्ड डायबिटीज डे के ओकेजन पे हमने जो विचार वेद अरेंज किया है, उसका थीम ही यही है कि जो नानो आयुर्वेद है वो हमें डायबिटीज में कैसे काम आए। तो इन जनरल आप एज अ प्रैक्टिशनर्स आप सभी डायबिटीज जानते हैं, डायबिटीज क्या है, कैसे है। ये स्लाइड मैंने इन जनरल आपके इंफॉर्मेशन के लिए रखी है। तो मैं ज्यादा डायबिटीज पे बात ना करते हुए एक लाइन में इसका कहूंगी कि हाँ, आज का वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो ये सर फ्रेडरिक बैंटिंग जी, इन्होंने आज के दिन इंसुलिन का डिस्कवरी करा। इसके लिए आज का वर्ल्ड डायबिटीज डे जो कल 14 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया, उसके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो डायबिटीज जो है, जैसे सब जानते हैं, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। सो सबसे बड़ा अभी लीडिंग कॉज जो है वो ग्लोबली वो डायबिटीज ही बोला जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन डायबिटीज के लिए लीडिंग कॉज डेथ है। उसके बाद HIV, एड्स, TB एंड देन मलेरिया। सो इंडिया में अगर प्रीवैलेंस रेट देखें तो अर्बन एरिया में ऑलमोस्ट 13.3 और रूरल एरिया में 7.8। तो ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 11 से 12% प्रीवैलेंस रेट इंडिया में डायबिटीज का है। उसके बाद टाइप 1 रहे, टाइप 2 रहे, सारे डायबिटीज आज हम इजीली उसको हम देख सकते हैं, या फिर हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद एक टाइप 1.5 डायबिटीज भी आजकल लोग बोलते हैं। टाइप 1.5 जैसे कि टाइप 1.5 इज बेसिकली जो हमारे यूथ है, जो आजकल का लाइफस्टाइल है, उससे रिलेटेड ये चीज है कि जो हम सिटिंग या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत टाइम तक ऑफिस में बैठना या बहुत टाइम तक विदाउट एनी फिजिकल एक्सरसाइज, उसके लिए जो यूथ में देखा जाने वाला डायबिटीज है वो टाइप 1.5 है। उसके बाद इस सारी चीजों में आयुर्वेद या फिर नैनो आयुर्वेद की जरूरत क्या है। तो सबसे बेसिक चीज है जो मैं स्लाइड 1 से मैं आपको बोलती आ रही हूँ कि वो है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी रहती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होती है, लोअर इफिकेसी दिखाती है और हाई फ्रीक्वेंसी, और मे भी उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद लेकिन जो हमारी नैनो आयुर्वेद है या फिर जो भस्म कल्पना है या जो भी रसकल्प है, वो स्पेसिफिक लोकेशन पे विथ हायर इफिकेसी एंड लो फ्रीक्वेंसी एंड विथ लेस साइड इफेक्ट्स वो काम करते हैं। वो जैसे मैंने मेंशन किया कि वो डायरेक्ट सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे वो जाके काम करते हैं। तो अगर हमें हमारे प्रैक्टिस में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो उसके साथ हमें जो भविष्य कल्पना के जो हमारे हर्बल ड्रग्स है, हर्बल फॉर्मुलेशंस है, उसके साथ अगर हम इन चीजों को यूज करें, गोल्ड प्रोडक्ट्स रहे या फिर रसकल्प रहे, तो वो इस चीज की इफिकेसी और बढ़ा देती है और उसका एक्शन और अच्छे से प्रूव होता है। उसके बाद आज जैसे कि मैंने मेंशन किया, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और आज की सीरीज में, रसशास्त्र के सीरीज में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम खल्वीय रसायन के बारे में या उसके कल्पों के बारे में हम जानेंगे। तो उसमें खल्वीय रसायन इज बेसिकली जो खरलिया कल्पना होती है, जो which requires good amount of pressure, friction and motion। तो प्रेशर देने से या मर्दन करने से जो स्ट्रक्चर होता है वो और वेरी फाइन होके जाता है। फ्रिक्शन जो होता है वो इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है, और मोशन सारे चीजों को उसमें जो मेंशन किए हुए भस्म है और जिससे हम उसको भावनाएं दे रहे हैं, वो स्वरस, क्वाथ, हिमकांड, इन सारी चीजों का बाइंडिंग अच्छे से करता है और एक होमोजेनियस फॉर्मुलेशन बनाता है। और ये सारी चीजों के वजह से, प्रेशर, फ्रिक्शन और मोशन के वजह से जो फॉर्मुलेशन है उसकी पोटेंसी सकल लेवल पे और बढ़ती है और वो अच्छे से कम मात्रा में भी अच्छे काम करते हैं। पार्टिकल साइज रिडक्शन और इक्वल बाइंडिंग जो मैंने ऑलरेडी पॉइंट मेंशन की। तो खल्वीय रसायन बेसिकली आज हम उसके बारे में दो कल्प ऐसे बारे में हम जानेंगे। वो है सुवर्ण युक्त सांडू वसंत कुसुमाकर रस, और दूसरा हमारा इथिकल प्रोडक्ट है डेबिक्स, सांडू डेबिक्स। अगर कल्प अभ्यास में हम देखेंगे तो वसंत कुसुमाकर रस में कंटेंट्स है सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, पंग भस्म, नाग भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, प्रवाड़ भस्म, मौक्तिक भस्म। इसमें जावित्री है और गोदुग्ध, इक्षुरस, वासा, लाक्षा, उदीच्य, कदलीकंद, शतपत्र, जाति, इन सारी को इस पे भावनाएं दी गई है। अगर हम इथिकल प्रोडक्ट रेंज में बात करेंगे, जो डेबिक्स है, सांडू डेबिक्स, इसमें कंटेंट्स है शुद्ध शिलाजतु, यशत भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, वंग भस्म, मेषश्रृंगी, जम्बू बीज, सप्तपर्ण, अर्जुन त्वक, गुड़ुची, शुद्ध कुचला, कारवेल्लक, लता करंज, बीज मज्जा एंड हरिद्रा।
अगर हम पाठ्य संयोजन देखेंगे तो वसंत कुसुमाकर में जो प्रधान द्रव्य मेंशन किया गया हुआ है वो है अभ्रक और सुवर्ण भस्म। तो जो जिस चीजों के लिए वसंत कुसुमाकर रस जाना जाता है वो हम इंडिकेशंस आगे देखेंगे। तो उसमें से अभ्रक या सुवर्ण भस्म जो है वो प्रधान द्रव्य हम उसे कह सकते हैं। इसमें प्रयोजक द्रव्य जो आते हैं सेकंड नंबर पे वो है वंग और नाग भस्म। इस एंटी डायबिटिक रहे या फिर कोई रिलेटेड इंडिकेशंस रहे, इन चीजों में जो सहायक द्रव्य करके काम आते हैं वो है रजत भस्म, लोह भस्म, प्रवाल भस्म और मौक्तिक भस्म। प्रतिबंधक द्रव्य के तौर पे हम गोदुग्ध ले सकते हैं। योगवाही द्रव्य है इसमें सुवर्ण और अभ्रक भस्म। संयोजक और विमर्दक द्रव्य हम कह सकते हैं जो इक्षुरस, वासा, लाक्षा, उदीच्य, कदली और कदली कंद और शतपत्र जाति की जो भावनाएं उसे दी गई है वो संयोजक और विमर्दक द्रव्य में हम उसे बोल सकते हैं। फिर इन जनरल अगर वसंत कुसुमा का रस अगर हम देखेंगे तो एक एज अ रिव्यू, वसंत का मतलब होता है कि इट्स नेम ऑफ अ कामदेव, और या फिर चैत्र वैशाख का महीना या फिर जो वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन। और कुसुमाकर का मतलब होता है वसंत ऋतु या फिर फ्लावर गार्डन। तो जो ऐसी चीज या फिर ऐसा कल्प जो हमारे इंद्रिय शैथिल्य को रहे या डायबिटीज को रहे या डायबिटीज से आने वाली जो हमारी इमैसिएशन रहे या फिर कोई थकान रहे, इन चीजों को डिबिलिटी के लिए, जनरल डिबिलिटी, ये सारी चीजों को दूर करके जो रसायन वृक्ष ये एक्शन हमें प्रोड्यूस करे दे, ये सारी चीजें वसंत कुसुमाकर रस करता है। ग्रंथोक्त इसका डोज 1 से 3 गुंजा दैट इज 125 मिलीग्राम से लेकर 375 मिलीग्राम बोला गया हुआ है। और वसंत कुसुमाकर रस एक ट्रस्टेड रेमेडी है जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में काम आती है। जैसे मैंने मेंशन किया वो रसायन वाजीकरण भी करती है, इम्प्रूव्स जेरियाटिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, इम्पेयर्ड मेमोरी स्टेटस एंड जनरल इम्यूनिटी। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के हेल्थ इश्यूज में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में भी काम आने वाली अच्छा कल्प फॉर्मुलेशन है और मल्टी डायमेंशनल फॉर्मुलेशन है जो काफी सारे इंडिकेशंस इसके बोले गए हुए हैं। इसके साथ अगर हम देखेंगे कि अगर वसंत कुसुमा का रस हम ले रहे हैं तो उसके साथ एक अनुपान का आयुर्वेद में भी एक रेफरेंस मेंशन किया हुआ है या फिर इंपॉर्टेंस मेंशन किया गया हुआ है कि अगर आप अनुपान अच्छे से ले रहे हैं तो आपका जो ओरिजिनल आप द्रव्य कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जो मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे हैं वो उसका वीर्यता या फिर उसका एक्शन वो है वो और इम्प्रूव होती है। तो हम देखेंगे कि अगर वसंत कुसुमा का रस हनी, मधु या मरीच चूर्ण या फिर पिपली चूर्ण के साथ ऐसा अनुपान लिया जाए वो ऑल टाइप्स ऑफ क्षय रोग में काफी बेनिफिशियल होता है। पर प्रमेह वसंत कुसुमा का रस, हरिद्रा चूर्ण, हनी और खड़ी शक्कर जो हम रॉक शुगर जिसे कहते हैं, अगर वो उसके साथ हम लेंगे तो वो उसमें प्रमेह में अच्छा इफेक्ट दिखाता है। रक्त पित्त में इसके 2 रेफरेंस बोले गए हुए, अगर वसंत कुसुमा का रस हम चंदन क्वाथ और खड़ी शक्कर के साथ लेंगे या फिर वसंत कुसुमा का रस प्लस वासा स्वरस, हनी या फिर खड़ी शक्कर इसके साथ लेंगे तो रक्त पित्त में ये काफी लाभदायक होता है। और रसायन वाजीकरण चिकित्सा वसंत कुसुमा का रस अगर हम दालचीनी, इलायची, तमालपत्र और चंदन चूर्ण के साथ एज अनुपान उसे लेंगे तो ये उसमें बेनिफिशियल है। अगर छर्दी या फिर रिलेटेड डिसीज में अगर उसे लेना रहेगा तो वसंत कुसुमा का रस एंटी एमेटिक भी काम करेगा। सिर्फ आपको अनुपान के तौर पे इसमें शंखपुष्पी स्वरस लेना है। आम्ल पित्त में अगर आप वसंत कुसुमा का रस देना चाहेंगे तो उसमें शतावरी स्वरस के साथ हनी और खड़ी शक्कर, रॉक शुगर आप एज अ अनुपान के तौर पे उसे ले सकते हैं। जो वसंत कुसुमा का रस के इंडिकेशंस बोले गए हुए हैं कि वो सिर्फ प्रमेह में काम नहीं करेगा, उसके साथ आने वाले जो मनोदौर्बल्य होते हैं या फिर कोई अनिश्चित वर्तन, कोई स्वभाव में आने वाली चिड़चिड़ होती है या फिर जो अति व्यवहार या ओजक्षय से आने वाले जो इंद्रिय शैथिल्य होता है उसके लिए वसंत कुसुमाकर एज अ रसायन काम करता है। अगर आप मधुमेह के साथ आने वाले जो व्याधि संकर होता है या फिर हृदरोग होते हैं, श्वास कास, इंद्रिय दौर्बल्य, ये सारी चीजों में या फिर जो मधुमेह के बाद आने वाली प्रमेह पिटिका जैसा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उपद्रव जिसे हम कह सकते हैं, उसमें अगर हम शिलाजतु के साथ, शुद्ध शिलाजतु के साथ अगर वसंत कुसुमाकर प्रिस्क्राइब करेंगे तो मधुमेह भी ठीक होता है और प्रमेह पिटिका भी ठीक होती है। इसका रेफरेंसेस इसके देखे गए हैं।
मधुमेह के एज ए लास्ट कॉम्प्लिकेशन अगर हम देखेंगे तो जो मद मूर्छा या संन्यास जो उत्पन्न होता है उसमें भी वसंत कुसुमाकर एज अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम उसे दे सकते हैं। इसके बाद अगर व्यवाय शोष जिसे कहा गया है वो एक चीज आयुर्वेद में डिसीज कंडीशन मेंशन की गई हुई है। अगर इसमें व्यवाय शोष के साथ अगर इमैसिएशन है या फिर दौर्बल्यता आ रही है तो या फिर किसी प्रकार का मानसिक उदासीन्य है तो उसमें भी हम वसंत कुसुमाकर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद अगर निद्रा नाश भी रहेगा तो भी वसंत कुसुमाकर अगर त्रिजाता के काढ़े के साथ या फिर इसके काढ़े के साथ एज अनुपान हम उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। रक्त पित्त में जैसे मैंने इसके पहले भी बोला अगर वो चंद्रकला या चंद्रप्रभा वटी के साथ या फिर प्रवाल या मौक्तिक भस्मों के साथ अगर या फिर वटी पिष्टि के साथ अगर हम देंगे तो वसंत कुसुमाकर काफी लाभदायक होता है। फिर और एक चीज वसंत कुसुमाकर की शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते एज अ प्रैक्टिशनर की हीमोस्टैटिक इसका एक्शन है। अगर जिन औरतों में रजस्राव जो है वो जल्दी रुकता नहीं है या फिर वो एज ए हीमोस्टैटिक एक्शन भी काम करता है तो सिर्फ इसको हमें मोगरे के फ्लावर के लेह के साथ उसको एज अ अनुपान उससे प्रिस्क्राइब करना चाहिए। वसंत कुसुमाकर एक वृक्ष औषधि जैसे मैंने मेंशन किया है ऑलरेडी वो इंद्रिय शैथिल्य रहे या फिर नपुंसक इम्पोर्टेंसी में काम आता है। अति व्यवाय के होने वाले उसके साथ आने वाले जो हृदय दौर्बल्य होता है या फिर कोई भी ड्राई सूखी खांसी रहे या फिर किडनी स्टोन किडनी विकार मूत्र विकार रहे इसमें भी मूत्रपिंड के विकार रहे इसमें भी वसंत कुसुमाकर का इफेक्ट अच्छा देखा गया है। और एक कंडीशन है वो सर्वांग शोफ नाम के जो डिसीज कंडीशन बोली हुई है उसमें अगर वातज है तो जो हृदय के स्थान पे, पित्तज है वो यकृत के स्थान पे, कफज है वो मूत्रपिंड के स्थान पे और सर्वज जो है वो ये सारे तीनों वातज पित्तज कफज इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें ये चारों आयुर्वेद के जो टाइप्स आयुर्वेद में जो सर्वांग शोफ के जो टाइप्स बोले हुए हैं इसमें भी वसंत कुसुमाकर एज अ बेस्ट मेडिसिन काम करता है। वसंत कुसुमाकर रसायन के तौर पे स्त्रियों में भी काम आ सकता है। उसमें प्रदर रोग रहे या फिर सर्वांग शैथिल्य रहे या फिर स्त्रियों में बहुत सारी चीजों में अजीब सी घबराहट रहती है, मानसिक दौर्बल्य रहता है या फिर कुछ चीजों से उनके माइंड प्रेशर या फिर चीजों ऐसी कोई चीजें रहती है कि जो वो ताण या फिर वो मानसिक तनाव सहन नहीं कर पाती या फिर निरुत्साह होता है उसमें भी वसंत कुसुमाकर हम दे सकते हैं। तो एक तो ऑन एन एवरेज अगर हम कंक्लूजन में जाए वसंत कुसुमाकर के तो वसंत कुसुमाकर सिर्फ डायबिटीज में नहीं दे सकते, सिर्फ डायबिटीज में ही नहीं तो वो बल्य भी है, वृक्ष है, मधुमेह में तो है ही और मानसिक डिसीजों मानसिक विकारों में भी इसे हम दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसका फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसके हर एक इंग्रेडिएंट की वो हम अभी एक इन शॉर्ट देखेंगे। तो अभ्रक भस्म जो इसका हमने मेंशन किया कि वो हमारा प्रधान द्रव्य है तो अभ्रक भस्म जो है वो ऑलरेडी प्रूवन है कि वो एक नर्वाइन टॉनिक है, वो रसायन है और वो धातु परिपोषण क्रम जो है मतलब रस से लेके रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये सप्त धातुओं का जो बनने का क्रम है उसको ये चीज अभ्रक भस्म जो है वो इम्प्रूव करती है। और जो इन जनरल डेबिलिटी आती है या फिर जो कोई इन जनरल दौर्बल्यता आती है उसमें अभ्रक भस्म आपको अच्छा रिजल्ट देता है जो इसका मेन कंटेंट है। उसके बाद वो योगवाही है अभ्रक भस्म तो जो मैंने कहा नैनो पार्टिकल्स या नैनो स्ट्रक्चर्स का जो मेन एम है वो टारगेटेड सेल पे एक्शन करता है, टारगेटेड डिजायर्ड साइट पे एक्शन करता है। अभ्रक भस्म की योगवाही प्रॉपर्टी भी सेम काम करती है। सुवर्ण भस्म जो ऑलरेडी प्रूवन है वो वृक्ष है जो रसायन है उसके बाद एज ए टॉनिक है, हिपाटोप्रोटेक्टिव हिपाटोटॉनिक है, कार्डियो स्टिमुलेंट है, एंटी इफेक्टिव ड्रग है बेसिकली जो ऑलमोस्ट सारे डिसीजेस में काम आता है जो अभी प्रूवन है उसमें अभी नई चीजें एड ऑन होती ही रहती है। उसके बाद रजत भस्म है जो नेचुरल कूलेंट है, इसमें स्क्रैपिंग क्वालिटी है जिससे ये जो चीज रजत भस्म है वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज में काम आता है विच इम्प्रूव स्किन कॉम्प्लेक्शन, डाइजेशन पावर, बॉडी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, इंटेलिजेंस। सो बेसिकली इट इज वृक्ष है, मेद्य है, बलवर्धक है
रसायन वाजीकरण एक्शन इसकी है, एंटी डायबिटिक है, टिश्यू वेस्टिंग या यूरिनरी डिसऑर्डर्स में काम आता है, फीवर, यूटेराइन डिसऑर्डर, इपिलेप्सी में कूलेंट प्रॉपर्टी होने से इसका प्रभाव देखा जाता है। उसके बाद वसंत कुसुमाकर में अगला भस्म है वो है लौह भस्म, उसका भी कूलेंट नेचर है, बट ये हेवी टू डाइजेस्ट है और ड्यू टू स्क्रैपिंग क्वालिटी इट इज ऑल्सो यूजफुल इन कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। सो ये भी ऑलमोस्ट रजत भस्म के जैसे ही सेम इफेक्ट शो करता है, जो डाइजेस्टिव पावर इंक्रीज करना या नेचुरल वृक्ष एक्शन दिखाता है, कॉम्प्लेक्शन या मेमोरी इंटेलिजेंस इंप्रूव करता है। बहुत सारे क्रॉनिक डिसीजेस जो लीवर डिसऑर्डर्स है या फिर डायबिटीज है, डायबिटीज के कोई कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें भी लौह भस्म अच्छा काम करता है। नाग भस्म जो है वो डेफिनेटली डायबिटीज में यूजफुल है, ये नॉन हीलिंग वुंड्स में, पाइल्स, डायरिया, जॉन्डिस, इन सारे डिसीजेस में और डायबिटीज से रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशंस में भी काम करता है। वंग भस्म जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है, अगर जिस जहाँ पे डायबिटीज की चिकित्सा अगर वैद्यगण करने जाते हैं तो ये डायबिटीज के साथ साथ डायबिटीज में साथ में आने वाले ओबेसिटी रहे या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन रहे, पांडु रोग रहे, अस्थमा रहे, इन सारी चीजों में ये काम करता है और स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ाता है। प्रवाल भस्म जो है वो आइडियल फॉर आई डिसऑर्डर है। फिर जो अगर हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में अगर बात करेंगे तो प्रवाल भस्म का एक्शन इस चीज में काम आ सकता है। मौक्तिक भस्म जो है वो वेरी गुड एंटासिड है और एफ्रोडाइसियक है। उसके बाद अगर हम इसके कंटेंट हर एक वसंत कुसुमाकर के कंटेंट के बारे में बात करेंगे तो इसकी साइन एंड सिम्टम्स पे और इसका जो हर एक कंटेंट इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे तो क्लेद प्रॉपर्टी क्लेद जो साइन एंड सिम्टम है तो वो मुक्तायन प्रवाल भस्म जो है वो क्लेदनाशक प्रॉपर्टी है, तो वो वासास्वरस उसके बाद ये काम करता है इसमें। देन स्वेदाधिक्य जो होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, तो उसमें मुक्ता प्रवाल ये जो भवना द्रव्य उसमें है, मुक्ता प्रवाल ये जो द्रव्य है उसमें हम इसका एंटी डायबिटिक एक्शन देख सकते हैं। फिर स्वेदनाशक प्रॉपर्टी इसकी काम आती है। उसके बाद लोह भस्म रहे, स्वर्ण भस्म रहे, रजत भस्म, ये जैसे मैंने मेंशन किया कि वो धातु पोषक प्रॉपर्टी इसमें है। फिर एक्सेसिव थर्स्ट के लिए रजत भस्म काम करता है। कदली कंदरस है, ये सारे एक्सेसिव थर्स्ट में डायबिटीज के वजह से आने वाली कॉम्प्लिकेशंस में काम करते हैं। वैसे ही सारे आगे मैंने मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे एक सवाल हमेशा आता है कि क्या ये भस्म कल्पना या फिर जो रसकल्प है या फिर जो भस्म कंटेंट वाले जो क्या फॉर्मुलेशन है क्या वो सेफ है। तो यस, अगर हम वसंत कुसुमाकर रस के बारे में बात करेंगे तो इसकी टॉक्सिसिटी स्टडी की गई हुई है और स्टैंडर्ड डोज अगर जब इसका दिया और जब वो अप टू 180 डेज एडमिनिस्ट्रेट किया गया तो वो सेफ ही उसका रिजल्ट आया, तो हेंस इट इज यूजफुल, इट इज सेफ टू यूज। उसके बाद मैंने ये सारे अभ्रक भस्म रहे, इसके जो सारे कंटेंट्स है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये इसका जनरल एक्शन त्रिदोषहर है, वाता कफ शामक है, तो ये ऑलमोस्ट प्रमेह रहे, मधुमेह रहे, इसके सारे या फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस रहे, इन सारी चीजों में ये अच्छा काम करता है। उसके बाद हम हमारा सेकंड इथिकल रेंज में अगर हम देखेंगे तो वो है सांडोडेबिक्स। ये इसमें अगर हम प्रधान द्रव्य देखेंगे तो वो है मेषश्रृंगी, जम्बूबीज, सप्तपर्णा। प्रयोजक द्रव्य जो आते हैं वो है कारवेल्लक, शुद्ध शिलाजतु, अभ्रक एंड वंग भस्म। और सहायक द्रव्य के तौर पे काम कर रहे हैं यशोदन लोह भस्म, अर्जुन त्वक, गुड़ूची। योगवाही द्रव्य इसमें है अभ्रक भस्म, शुद्ध कुचला। संरक्षक द्रव्य के इसमें हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं वो है हरिद्रा एंड संयोजक द्रव्य है लता करंज, बीज मज्जा। तो ये कंटेंट सांडोडेबिक्स के इस टैबलेट्स में हम देख सकते हैं। इसके बाद जनरल यूज ऑफ सांडोडेबिक्स फॉर्मुलेशन के जो यूजेस है वो है इट हेल्प्स टू नॉर्मलाइज इन ब्लड शुगर लेवल, which reduces frequency of excess urination, prevents diabetic complications of kidney, heart, nerves, eyes, etc., and it corrects the functioning of reproductive system and provides strength. So almost same as I earlier mentioned about the Vasanta Kusumaka Ras. तो Vasanta Kusumaka Ras और सांडोडेबिक्स के इथिकल रेंज में हम हमारे ऑलमोस्ट सारे इंडिकेशंस जो है वो या फिर यूजेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। डेबिक्स सांडोडेबिक्स का डोज है 1 से 2 टैबलेट 3 times a day।
अगर हम इसके कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे तो मेषश्रृंगी का है वो ग्रंथ में इसमें बोला गया हुआ, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका मेंशन किया गया हुआ कि इसका प्रॉपर्टी रुद्र है, रुद्रोग विषय रुद्रोग के लिए काम करता है। फिर जम्बू बीज का जैसे हम ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिशनर जानते हैं कि वो भी रुद्र है, मधुमेह दूर करता है। सप्तपर्णी है वो यकृत उत्तेजक है, शर्करा विनिमय क्रिया उसका काम करता है, मधुमेह नाशक है। अर्जुन त्वक भी है, रुद्र है, मेदोमेह व्रणहंती। सो ये मेदोमेह इन सारी चीजों में अच्छा काम करेगा एज ए इंडिकेशन। फिर गुड़ुचि है जो प्रमेह में हृदरोग में भी काम करती है। फिर कारवेल्लक है वो प्रमेह नाशन और रुद्र उसका प्रॉपर्टी बोली हुई है। शुद्ध कुचला जो विष द्रव्य है लेकिन जो उसका योगवाही आशुकारी व्यवाही विकासी जो उसके विष द्रव्यों के गुण है वो इसमें अच्छे से उभर के आते हैं, फिर वो काम अच्छा से करता है। उसके बाद और है अभ्रक भस्म, भस्मों में उसमें अभ्रक भस्म लोह भस्म है। जैसे अभ्रक भस्म के बारे में हमने इसके पहले वसंत कुसुमा का रस में भी जाना था। लताकरंज है वो भी शोफनाशन यकृतलीहा वातग्नि है। हरिद्रा है वो मेघघातिनी या फिर शुद्ध शिलाजतु है वो भी योगवाही और रसायन काम करता है। यशद भस्म जो है वो भी बहुमेह निषोदनम स्वप्न में हम व्यपोहति जो वंग भस्म है वो भी मेदोहर सर्वप्रमेह प्रमेहग्न, ये चीजें ग्रंथों में ऑलरेडी रेफरेंस के तौर पे हमने यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर हम जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे सांडू डेबिक्स के बारे में, तो मेषश्रृंगी जो है वो जिम्नेमिक एसिड जो है उसमें ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है और वो पैंक्रियाटिक सेल्स का जनरेट्स करके उसके इंसुलिन सिक्रीशन को और बढ़ावा देते हैं। जम्बू बीज है उसमें गैलिक एसिड या फिर टैनिन है वो इंक्रीजेस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूसेस ब्लड एंड यूरिन ग्लूकोज लेवल। कारवेल्लक जो है करेला बेसिकली वो स्टिमुलेट्स पैंक्रियाज एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। हरिद्रा वो डायबिटीज से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस है या स्किन डिसऑर्डर्स है या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, वुंड हीलिंग एक्शन हरिद्रा की जो प्रूवन है। वर्ण्य है या फिर कोई भी ऐसा वुंड जो डायबिटीज में होता है जो नॉन हीलिंग अल्सर होता है तो उसमें भी हरिद्रा काम करती है। शुद्ध शिलाजतु जो प्रूवन है एंटी डायबिटिक है, रेगुलराइजेस पैंक्रियाटिक फंक्शन। गुड़ुचि है जो रुद्र बोला हुआ है उसका एक्शन। वंग भस्म एंड अभ्रक भस्म ये दोनों चीजें हमने वसंत कुसुमा का रस में ऑलरेडी देखा जो एंटी डायबिटिक एक्शन है ही, उसके साथ वो रसायन एक्शन भी शो करते हैं। यशद भस्म जो है वो इम्प्रूव विजन एंड अरेस्ट जो डायबिटिक कैटरैक्ट रहे या कैटरैक्ट जैसी चीजों में डायबिटीज का एज अ कॉम्प्लिकेशन आता है उसमें काम कर सकता है। अर्जुन जो है वो प्रूवन कार्डियोटोनिक है। कुचला जैसे मैंने मेंशन किया योगवाही द्रव्य है, विष द्रव्य है, विकासी है, तो विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑल्सो। अगर हम सांडो डेबिक्स हमारे प्रैक्टिस में देना चाहेंगे तो हम उसको और कौन से कॉम्बिनेशंस में यूज कर सकते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर डायबिटीज के लिए हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो सांडो डेबिक्स के साथ हम सांडो चंद्रप्रभा वटी और सांडो लोधरासव प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर पॉलीयूरिया हम डेबिक्स के साथ चंद्रप्रभा वटी एंड सांडो लोधरासव एज सेम एज डायबिटीज मेलाइटस। अगर डायबिटीज के वजह से अगर हार्ट डिसीज है या फिर कोई रुद्रोग उसे देखा जा रहा है पेशेंट में तो हम डेबिक्स के साथ अर्जुनारिष्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में हम डेबिक्स के साथ सांडू बृहत्वा चिंतामणि और सांडू अश्वगंधारिष्ट ये दोनों फॉर्मुलेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इम्पोटेंसी के पेशेंट में हम डेबिक्स के साथ इम्पोटेंसी जो ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस उसमें हम डेबिक्स के साथ चंद्रप्रभा वटी, सांडू मकर ध्वज, सांडू अश्वगंधारिष्ट और सांडू वसंत कुसुमा का रस हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डायबिटिक रेटाइनोपैथी में हम डेबिक्स के साथ वसंत कुसुमा का रस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो कंक्लूजन के तौर पे अगर हम देखेंगे तो जो लोगों को सवाल रहता है कि क्या रक्तभस्म प्रैक्टिस में यूज करना सेफ है या फिर उसकी टॉक्सिसिटी प्रूव है या नहीं है, तो अगर हम देखा जाए तो आज नैनो जैसे मैंने सबसे पहले स्लाइड में मेंशन किया रामायण काल का रेफरेंस, तो अगर जो चीज इतने सालों से भारत में है या फिर हम बोल सकते हैं जो नेचर में ऑलरेडी जो है
तो वो चीज जरूर और सेफ ही है, इसके लिए वो अभी तक है। उसके बाद जो रक्तभस्म है उसका टॉक्सिसिटी कब होता है, अगर वो प्रॉपर भस्म या फिर जो जब वो मेटल मिनरल रहे वो प्रॉपर शोधन उसका नहीं हुआ रहेगा, प्रॉपर जारण मारण नहीं हुआ रहेगा, तो वो उसमें काम कर उसमें शोधन उसका अगर नहीं हुआ रहेगा तो ही वो अनसेफ होता है। जो टॉक्सिसिटी स्टडीज जो हमने आज जितने भी भस्मों के बारे में या भी जितने भी वसंत कुसुमाकर रहे या डेबिक्स के कंटेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में मेंशन किए, उन सारी चीजों की सारी इंग्रेडिएंट्स की टॉक्सिसिटी स्टडी हुई है और वो सबने वो प्रूवन है कि वो टॉक्सिक ऐसी कोई टॉक्सिसिटी उसमें प्रूव नहीं हुई। ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड डोज तक उसे दिया गया फिर भी उसकी टॉक्सिसिटी नहीं हुई देखी गई। तो कंक्लूड हम यही कर सकते हैं कि अगर हमें फास्ट और बेटर रिजल्ट चाहिए तो हमारे प्रैक्टिस में हमें भैषज कल्पना के स्वरस रहे, क्वाथ रहे, हिम रहे, पांड रहे या कोई चूर्णवटी रहे, इन सबके साथ हमें रसकल्पों को, भस्मों को या जो भी इन चीजों को हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम मॉडर्न एलोपैथी के बारे में अगर हम बात करें तो एलोपैथी मेडिसिन के जो लूप होल्स है वहां पे शायद नहीं, वहां पे आयुर्वेद जरूर काम करेगा। वहां पे आप रसकल्पक का जो एक्शन है वो बहुत सारे इसमें रिसर्च स्टडी हो रहे हैं जो प्रूव कर रहे हैं कि हाँ उसका एक्शन फास्ट है, उसका एक्शन लॉन्ग क्विक है, फास्टर है। और फाइनली अगर हम टेक होम मैसेज में बात करें तो नॉलेज इज अ नोइंग अ टोमेटो इज अ फ्रूट, विजडम इज नॉट पुटिंग इट इन अ फ्रूट सैलेड। तो जो चीज मैं बोल रही हूँ कि हाँ हमें पता है आयुर्वेद है, आयुर्वेद एक अच्छा रिजल्ट है, आयुर्वेद में भस्म है, आयुर्वेद में कुपिपक्व रसायन है, पोटली रसायन है, जो मैं पहले स्लाइड से बोलते आ रही हूँ कि वो चीजें हमें हमारे प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा कवर करनी चाहिए जिसका हमें फास्टर रिजल्ट मिले। सो विशिंग यू ऑल द हैप्पीनेस एंड स्वीटनेस बट नो डायबिटीज। हैप्पी वर्ल्ड डायबिटीज डे। थैंक यू। Hello all, myself Dr. Shraddha from Sandu Pharmaceuticals, and thank you for patience listening. As Vagbhat says, Abhyasat Prapyate Drushti, Karma Siddhi Prakashini. So here is a small effort to share the knowledge because I believe that sharing will enrich everyone with more knowledge. And Vidya Dhanam Sarvadhanam Pradhanam. So it is a platform, and I welcome you on this platform for a future. As we want to make this knowledge sharing platform more and more engaging. So those who want to become a good knowledge sharer, so they can contact us so that we can plan such a nice webinars for you, and you can become a speaker on this platform also. And thanks Dr. Trupti. I'm looking past 8 days, as we due to Diwali we got a less time to prepare all these things, but Dr. Trupti did very good job, and she did that on her own. She shared her own thoughts without taking anyone's help. So I must appreciate Dr. Trupti, and thank you very much for sharing such a wonderful knowledge. And thank you. We'll meet in the next session on November 24th with Dr. Suvinay Damle, which is one of the famous name in Ayurveda. So we will meet with one new, more interesting topic as pathological, how to read pathological reports in Ayurveda perspective. So we'll meet on 24th October. So kindly reserve your time between 3 to 4 p.m. Thank you very much. So kindly give your feedback. Is anyone have a question? So they can ask. Okay, as time is exceeding, so please contact us personally also. Thank you. Thank you very much.